بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھانا کھا کر حدید نے لڑکیوں کو اپنے درمیان لٹایا اور انہیں کہا کہ وہ ہوشیار رہیں۔ محافظوں سے کہا کہ وہ کمانے تیار رکھیں، سوئے نہیں لیٹے رہیں۔ اسے یقین تھا کہ رات کو حملہ ضرور ہوگا، کیونکہ صحرائی ڈاکوؤں کو راستے میں وہ دیکھ چکا تھا۔ حدید ذمہ دار محافظ تھا۔ وہ سلطان ایوبی کی دی ہوئی ذمہ داری کو پوری ایمانداری سے نبھا رہا تھا۔ رات آدھی گزر چکی تھی۔ صحرا پرسکون اور خاموش رہا۔ پھر اچانک ان کے گرد سیاہ بھوتوں جیسے بڑے بڑے سائے دوڑنے لگے۔ اونٹوں کے قدموں کی دھمک سنائی دے رہی تھی اور زمین دہل رہی تھی۔ اونٹوں کی تعداد 10 سے زیادہ معلوم ہوتی تھی اور ان پر ایک ایک سوار تھا۔ وہ محافظوں وغیرہ کو دہشت زدہ کرنے کے لیے ان کے ارد گرد اونٹوں کو دوڑا رہے تھے۔ 3 4 چکر پورے کر کے ایک نے للکارا، لڑکیاں ہمارے حوالے کر دو، تم میں سے کچھ اور لیے بغیر ہم چلے جائیں گے۔ اس کے جواب میں حدید نے لیٹے لیٹے پہلا تیر چلایا۔ جسے تیر لگا اس کی بڑی زور کی آواز سنائی دی۔ دوسرے محافظوں نے بھی لیٹے لیٹے ایک ایک تیر چلایا۔ 2 اونٹ بلبلا کر بولے اور بے قابو ہو گئے۔ حدید نے لڑکیوں سے کہا بھاگنا نہیں، ہمارے ساتھ رہنا۔ شتر سواروں میں سے کسی نے کہا ٹوٹ پڑو، کسی کو زندہ نہ چھوڑو، لڑکیوں کو اٹھا لو۔ صحرا کی رات اتنی شفاف ہوتی ہے کہ چاندنی نہ ہو تو بھی کچھ دور تک نظر آ جاتا ہے۔ شتر سوار اونٹوں سے کود آئے، پھر تلواریں اور برچیاں ٹکرانے کا اور دونوں فریقوں کی للکار کا شور رات کا جگر چاک کرنے لگا۔ کسی کو ایک دوسرے کا ہوش نہ رہا۔ حدید اور محافظوں نے لڑکیوں کو اس طرح اپنے درمیان کر لیا تھا کہ محافظوں کی پیٹھیں لڑکیوں کی طرف تھیں۔ لڑکیوں نے کئی بار کہا کہ ہمیں بھی کچھ دو۔ حدید نے کہا میری تلوار نکال لو۔ وہ خود برچھی سے لڑ رہا تھا۔ ایک لڑکی نے اس کی نیام سے تلوار نکال لی اور دونوں محافظوں کے درمیان سے نکل گئی۔ حدید نے اسے کہا ہم سے جدا نہ ہونا لڑکی۔ ڈاکوؤں کا زیادہ حلہ لڑکیوں پر تھا۔ عالم کی کوئی آواز سنائی نہ دی۔ یہ مارکا بہت دیر لڑا جاتا رہا۔ آدمی بکھرتے چلے گئے۔ محافظ ایک دوسرے کو پکارتے رہے، پھر ان کی پکار ختم ہو گئی۔ مارکے کا شور بھی کم ہوتا گیا۔ حدید نے اپنے ساتھیوں کو پکارا، لیکن اسے کوئی جواب نہیں مل رہا تھا۔ اسے ایک لڑکی کی آواز سنائی دی، وہ اسے پکار رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ایک گھوڑے کے سرپٹ دوڑنے کی آواز سنائی دی۔ حدید سمجھ گیا کہ کوئی ڈاکو ایک لڑکی کو اونٹ کی بجائے کسی محافظ کے گھوڑے پر ڈال کر لے گیا ہے۔ وہ دوڑ کر ایک گھوڑے تک پہنچا۔ زین کسی ہوئی تھی۔ وہ گھوڑے پر سوار ہوا اور بھاگنے والے گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز پر تعاقب میں گیا۔ دوسری لڑکی کے متعلق اسے معلوم نہیں تھا کہ کہاں ہے۔ اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ صحرا میں کوئی رکاوٹ، کوئی ندی نالا نہیں تھا۔ گھوڑا ہوا سے باتیں کرنے لگا۔ اگلا گھوڑا بھی اچھی نسل کا تھا۔ فرق یہ کہ اس گھوڑے پر 2 سوار تھے۔ کوئی 1 میل بعد حدید کو اگلے گھوڑے کا سایہ نظر آنے لگا۔ اس نے تعاقب جاری رکھا۔ فاصلہ کم ہو رہا تھا۔ حدید نے محسوس کیا کہ اس کے پیچھے بھی ایک گھوڑا آ رہا ہے، جس کا سوار محافظ بھی ہو سکتا تھا اور ڈاکو بھی۔ اس نے گھوم کر دیکھا، پچھلا گھوڑا قریب آ گیا تھا۔ حدید نے پکارا کون ہے؟ اسے جواب نہ ملا۔ اس نے تعاقب جاری رکھا اور گھوڑے کو اور زیادہ تیز کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اگلا گھوڑا سیدھا جا رہا تھا۔ اس کی باگ شاید لڑکی کے ہاتھ میں آ گئی تھی، کیونکہ حدید دیکھ رہا تھا کہ وہ گھوڑا دائیں بائیں ہو رہا تھا اور اس کی رفتار بھی گھٹتی جا رہی تھی۔ وہ اس تک پہنچ گیا۔ اس کے پاس برچھی تھی۔ اس نے اگلے سوار کو پہلو مر جا کر برچھی کا وار کیا، لیکن وہ گھوڑا ایک طرف ہو گیا۔ سوار تو بچ گیا، برچھی گھوڑے کو لگی۔ حدید نے گھوڑا روکا اور گھمایا۔ دوسرا سوار بھی گھوڑا گھمانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن لڑکی جو اس کے آگے بیٹھی تھی باغیں ادھر ادھر کر کے گھوڑے کا رخ صحیح نہیں ہونے دیتی تھی۔ حدید نے لڑکی کو پکارا تو لڑکی اور زیادہ دلیر ہو گئی۔ سوار لڑکی کو ساتھ لیے گھوڑے سے اتر آیا اور اس نے اپنے گھوڑے کو ڈھال بنا لیا۔ حدید اپنے گھوڑے کو گھما گھما کر لاتا، مگر جدھر سے بھی وار کرنے آتا ڈاکو لڑکی کو ساتھ لیے اپنے گھوڑے کی اوٹ میں ہو جاتا۔ آخر حدید گھوڑے سے اتر آیا۔ اتنے میں دوسرا سوار بھی آ گیا۔ وہ محافظ نہیں ڈاکو تھا۔ وہ بھی گھوڑے سے اتر آیا۔ حدید نے انہیں للکارا لڑکی کو نہیں لے جا سکو گے۔ ایک ڈاکو نے لڑکی کو دبوچے رکھا اور دوسرا حدید سے لڑنے لگا۔ لڑکی کے پاس اب تلوار نہیں تھی۔ دوسرے ڈاکو نے لڑکی کو چھوڑ دیا اور وہ حدید پر ٹوٹ پڑا۔ حدید نے لڑکی کو پکار کر کہا تم گھوڑے پر بیٹھو اور شعبے کی طرف نکل جاؤ۔ میں ان دونوں کو تمہارے پیچھے نہیں آنے دوں گا۔ مگر لڑکی وہیں کھڑی رہی۔ حدید نے دونوں کا خوب مقابلہ کیا۔ ڈاکوؤں نے اسے بار بار کہا ایک لڑکی کے لیے اپنی جان مت گنواؤ۔ حدید نے ہر بار یہی جواب دیا۔
पहले मेरी जान लो, फिर लड़की को ले जाना। और उसने कई बार लड़की से कहा, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? भागो यहाँ से। आखिर लड़की ने कहा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगी। हदीद ज़ख्मी होने लगा। उसने एक बार फिर लड़की से कहा, मैं ज़ख्मी हो गया हूँ, मेरे मरने से पहले निकल जाओ। एक डाकू लड़की की तरफ घूमा। हदीद को मौका मिल गया। उसने बर्छी उसके पहलू में उतार दी। लेकिन उस वक़्त दूसरे डाकू की तलवार उसके कंधे पर लगी। लड़की ने एक डाकू को गिरते देख लिया था। उसने दौड़कर उसकी तलवार ले ली और पीछे से आकर दूसरे डाकू की पीठ में बर्छी की तरह उतार दी। वो संभलने लगा तो आगे से हदीद की बर्छी उसके सीने में उतर गई। वो डाकू भी खत्म हो गया, मगर उसके साथ ही हदीद भी खड़ा रहने के काबिल ना रहा। लड़की ने उसे सहारा दिया तो उसने कहा, तुम ठीक हो ना? मुझे छोड़ दो, घोड़े पर बैठो और फौरन शोबिक को रवाना हो जाओ। अल्लाह तुम्हें हैरियत से पहुंचा देगा। शोबिक दूर नहीं, अपने साथियों की तरफ ना जाना, वहां शायद कोई जिंदा नहीं होगा। जख्म कहाँ है? लड़की ने उससे पूछा। मुझे मरने दो लड़की, हदीद ने कहा। तुम निकल जाओ, खुदा के लिए मेरा फर्ज तुम खुद ही पूरा कर दो। कहीं ऐसा ना हो कि कोई और कज़ाक इधर आ निकले। लड़की की गलत फहमी और शकूक रफा हो चुके थे। वो समझ गई थी कि उस शख्स ने उसकी खातिर जान खतरे में डाली है। उसने उसे अकेला छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। दौड़ कर गई, घोड़े की जीन के साथ बंधी हुई पानी की छागल खोल लाई और हदीद के मुंह के साथ लगा दी। उसे पानी पिलाकर छागल घोड़े के साथ बांध दी और उसे पूछने लगी कि उसके जख्म कहाँ हैं। हदीद ने उसे जख्म बताए तो उसने अपने कपड़े फाड़े और कुछ टुकड़े हदीद के लिबास से फाड़े। उन्हें पानी में भिगोकर उसने हदीद के जख्मों पर बांध दिया। उसे इस काम की ट्रेनिंग दी गई थी। उसने हदीद को सहारा देकर उठाया और घोड़े तक ले गई। बड़ी मुश्किल से उसे घोड़े पर बिठाया। खुद दूसरे घोड़े पर बैठने लगी तो हदीद ने कहा, मैं अकेला घोड़े पर नहीं बैठ सकूंगा। वहां 3 घोड़े थे। लड़की ने यह दानिशमंदी की कि घोड़े ज़ाया करने मुनासिब ना समझे। 2 घोड़ों की बागें एक घोड़े की जीन के पीछे बांध दी और खुद हदीद के पीछे सवार हो गई। उसने हदीद की पीठ अपने सीने से लगा ली और उसका सर अपने कंधे पर डाल लिया। शोबे की समत बता सकते हो? लड़की ने पूछा। हदीद ने आसमान की तरफ देखा, सितारे देखे और एक तरफ इशारा करके कहा, इस रुख को चलो। फिर उसने लड़की से कहा, मैं शायद जिंदा नहीं रह सकूंगा। खून निकल रहा है। जहां कहीं मेरी जान निकल जाए, मुझे वहीं दफन कर देना। और अगर तुम्हें मेरी नीयत पर कोई शुबा था, तो वो दिल से निकाल कर मुझे बख्श देना। मैंने अमानत में खयानत नहीं की। खुदा तुम्हें जिंदा व सलामत अपने ठिकाने पर पहुंचा दे। घोड़ा चला जा रहा था और रात गुजरती जा रही थी। सुबह तुलू हुई तो हदीद बेहोशी की हालत में था और अपने आप को होश में रखने की सरतोड़ कोशिश कर रहा था। उसका खून रुक गया था, लेकिन ज्यादातर खून बह जाने से उसका जिस्म बेजान हो गया था। लड़की ने उसे छोटे से नखलिस्तान में उतारा, उसे पानी पिलाया। घोड़ों के साथ कुछ खाने की चीजें बधी हुई थी, वो हदीद को खिलाई। उससे उसका दिमाग साफ होने लगा। उसे पहला ख्याल ये आया कि वो उस लड़की का मुहाफिज था, अब उसका कैदी है। लड़की ने उसे लिटा दिया। वो रात भर घोड़े पर सवार रहे थे। कुछ देर के आराम से हदीद का जिस्म ठिकाने आ गया। उसने लड़की से कहा, शोभिक दूर नहीं, शायद एक दिन की मुसाफिर है। तुम एक घोड़ा लो और उसे भगाती ले जाओ, जल्दी पहुंच जाओगी। मैं वापस चला जाऊंगा। तुम जिंदा वापस नहीं पहुंच सकोगे। लड़की ने कहा, अगर यहीं से वापस जाना है तो मुझे साथ ले चलो। तुमने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैं मर्द हूँ, हदीद ने कहा। मेरा दिल नहीं मान रहा कि एक लड़की मेरी हिफाजत करे। उससे बेहतर है कि मैं मर जाऊं। मैं इन मामूली लड़कियों में से नहीं हूँ जो घरों में पड़ी रहती हैं, लड़की ने कहा, और जो मर्द की हिफाजत के बगैर एक कदम नहीं चल सकती। मुझे एक फौजी मर्द समझो। फ़र्क सिर्फ ये है कि मेरा हथियार मेरी खूबसूरती, मेरी जवानी और मेरी चरब ज़ुबानी है। मैं तुम्हारी तरह सख्तियाँ बर्दाश्त कर सकती हूँ। मैं शोबिक तक पैदल पहुँच सकती हूँ। मैं तुम्हारे जज्बे की कदर करता हूँ, हदीद ने कहा। डाकू हम दोनों को कितना करीब ले आए हैं, मगर हम एक दूसरे के दुश्मन हैं। तुम मेरे मुल्क की बुनियादें हिलाने की कोशिश कर रही हो और एक दिन मैं तुम्हारे मुल्क पर हमला करने आऊँगा। लेकिन इस वक्त मेरी दोस्ती कबूल कर लो, लड़की ने कहा। दुश्मनी की बातें उस वक्त सोचेंगे जब तुम तंदुरुस्त होकर अपने मुल्क चले जाओगे। उसने हदीद की गर्दन के नीचे बाजू करके
उसे उठाया। हदीद अब उठ सकता था। वह उठा और आहिस्ता-आहिस्ता चलता घोड़े तक पहुँच गया। लड़की ने उसका पाँव उठाकर रिकाब में रखा और उसे सहारा देकर घोड़े पर सवार कर दिया। लड़की भी उसी घोड़े पर सवार होने लगी, तो हदीद ने हाथ आगे करके उसे रोक लिया और कहा, तुम अब दूसरे घोड़े पर बैठो, मैं अकेला सवारी कर सकूँगा। उसके बावजूद मैं इसी घोड़े पर बैठूँगी, लड़की ने कहा, तुम्हें अपने साथ लगाए रखूँगी। हदीद की जिद के बावजूद लड़की उसके पीछे सवार हो गई और जब एक बाजू उसके सीने पर रखकर उसे अपने साथ लगाने लगी, तो हदीद ने मुज़ाहमत करते हुए कहा, मुझे ज़रा अपने सहारे बैठने दो। लड़की ने ज़बरदस्ती अपने साथ लगाकर उसका सर अब अपने कंधे पर डाल दिया। उसने हदीद से पूछा, मैं जानती हूँ, तुम मुझे बदकार लड़की समझकर मुझसे दूर रहने की कोशिश कर रहे हो। नहीं, हदीद ने कहा, मैं तुम्हें सिर्फ लड़की समझकर दूर रहने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर तुम्हें अपने करीब करने की ख्वाहिश होती, तो 2 रातें तुम बेबसी की हालत में मेरी कैद में रही हो। मैं तुम्हें अपनी लोंडी बना सकता था, लेकिन मैंने अपने ऊपर शैतान का गलबा नहीं होने दिया था। अब तो मुझे ऐसे महसूस होता है, जैसे मैं अमानत में खयानत कर रहा हूँ। मेरे अंदर गुनाह का एहसास पैदा हो रहा है। तुम पत्थर तो नहीं हो? लड़की ने उससे पूछा। मुझे तो जिस मर्द ने भी देखा है, भूखी नज़रों से देखा है। मैंने सिर्फ इतनी सी कीमत देकर तुम्हारी कौम के 2 मोमिनों के ईमान खरीद लिए थे। कितनी कीमत? हदीद ने पूछा। सिर्फ इतनी सी कि उन्हें पास बिठाया और सर अपने कंधों पर रख लिया था। उनके पास ईमान था ही नहीं, हदीद ने कहा। जो कुछ भी था, लड़की ने कहा, वो मैंने उनसे ले लिया था। उसकी जगह उनके दिलों में अपनी कौम के खिलाफ गद्दारी डाल दी थी। वो कौन है? हदीद ने पूछा। अभी नहीं बताऊंगी, लड़की ने जवाब दिया। जिस तरह तुम अपने फर्ज के पक्के हो, इसी तरह मुझे भी अपना फर्ज अजीज है। हदीद खामोश हो गया। वो लड़की के जिस्म की हरारत और हल्की हल्की बू महसूस कर रहा था। लड़की के खुले हुए रेशमी से बाल हवा से लहरा लहरा कर उसके गालों पर पड़ रहे थे और गालों को सहला रहे थे। उसे ऊँघ आ गई। घोड़ा चलता रहा। बहुत दूर जाकर हदीद की आंख खुली तो सूरज सर पर आ चुका था। उसने कहा, घोड़े को एड़ लगाओ। मुझे उम्मीद है हम सूरज गुरूब होने के बाद शोबिक पहुंच जाएंगे। लड़की ने घोड़े को एड़ लगाई और सहरा तेजी से पीछे हटने लगा। सूरज गुरूब हो चुका था। शोबक के किले के उस कमरे में जहां सलीबी हाकिमों और कमांडरों के इजलास हुआ करते थे, वहां हाकिम और कमांडर बैठे थे। उनमें आलिम जासूस भी बैठा था। वो कह रहा था, मैं ये नहीं बता सकता कि दोनों लड़कियों का क्या हशर हुआ या हो रहा है। मैंने उन्हें बचाने बल्कि उन्हें देखने की भी कोशिश नहीं की, क्योंकि उनसे ज़्यादा कीमती ये राज था जो मुझे आप तक पहुंचाना था। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि डाकुओं ने हमला किया तो मैं मौका देखकर एक तरफ हो गया और घोड़े तक पहुंच गया। एक तो मेरी रिहाई मौजज़ा है, दूसरा मौजज़ा ये हुआ कि मैं इतने खून रेज़ मार्के में से साफ बचकर निकल आया। कोई भी मेरे पीछे नहीं आया। मेरा ख्याल है कि वो डाकू नहीं थे, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के भेजे हुए आदमी थे। ये नहीं बता सकता था कि उसने हम तीनों को खुद सजाए मौत क्यों ना दी और लड़कियों को खराब कराने का ये तरीका क्यों इख्तियार किया। ये एक ढोंग था। लड़कियां अब उन लोगों के कब्जे में होंगी और जालमाना अजियतें बर्दाश्त कर रही होंगी। उन्हें छुड़ाने का हम कोई तरीका नहीं सोच सकते, एक सलीबी हाकिम ने कहा। यह कुर्बानियां तो देनी पड़ती हैं। हमारे पास लड़कियों की कमी नहीं। हमारा ये तरीका कामयाब है। इसे जारी रखने के लिए और लड़कियां तैयार करो। सब आ गए हैं। अब वो राज बताओ जो तुम अपने साथ लाए हो। आलिम जासूस उन्हें सुना चुका था कि वो काहिरा की एक मस्जिद से किस तरह गिरफ्तार हुआ था, कैद खाने में उसके साथ और लड़कियों के साथ क्या सलूक हुआ, और सुल्तान अयूबी ने उन्हें किस तरह खिलाफ तवक्को रिहा किया। उसने ये भी सुनाया कि यह राज सुल्तान अयूबी ने उसे किस तरह दिया है। उसने तारीख बताकर कहा, सलाहुद्दीन अयूबी उस रोज़ अपनी फ़ौज को कूच कराएगा। वो कर्क पर हमला करेगा। नायब सालार कह रहे थे कि शोबिक को पहले लेना चाहिए, क्योंकि यह मजबूत कला है। लेकिन सलाहुद्दीन अयूबी शोबिक पर अपनी ताकत नहीं ज़ाया करना चाहता। वो कर्क को कमज़ोर समझकर पहले उसे लेना चाहता है। वहाँ वो अपनी फ़ौज और रसद वगैरह का अड्डा बनाएगा। रसद जमा करके वो कुमक बुलाएगा और फ़ौज को काफ़ी आराम देकर शोबिक पर हमला करेगा। उसने ये ख़ास तौर पर कहा था कि वो हमें बेखबरी में लेना चाहता है। उसकी वजह उसने ये बताई है
کہ उसकी फ़ौज कम है और हमारी फ़ौज ज़्यादा भी है और हमारे पास घोड़े भी बेहतर हैं और हमारे पास खूद और ज़रा बख्तर हैं। उसने साफ अल्फाज में कहा है कि अगर सलीबी फ़ौज ने उसे रास्ते में रोक लिया तो उसे शिकस्त के सिवा कुछ हासिल ना होगा। वो खुले मैदान में लड़ने से डरता है। आलिम जासूस ने वो तमाम बातें बताईं जो उसने सुल्तान अयूबी की ज़ुबान से सुनी थी। इतने कीमती और अहम राज की तफसील सुनकर लड़कियों को सब भूल गए और इस मसले पर तबादला ख्यालात करने लगे। वो इस नतीजे पर पहुंचे कि सुल्तान अयूबी गैर मामूली तौर पर दानिशमंद जंगजू है। उसने कर्क पर हमले का जो प्लान बनाया है उसमें उसकी जंगी फहमो फरासत का पता मिलता है। रास्ते में ना लड़ने का फैसला भी उसकी दनाई की दलील है। वो रास्ते में ताकत ज़ाया नहीं करना चाहता। यह खुदाए यसु मसीह का खास करम है कि उसके प्लान का इल्म हो गया है, वरना वो कर्क को लेकर शोबिक जैसे मजबूत दिफा के लिए खतरा बन सकता था। उन्होंने उसी वक्त सुल्तान अयूबी के प्लान के मुताबिक अपनी फौजों की नकलो हरकत और दिफा का प्लान बनाना शुरू कर दिया। प्लान में ये इकदाम तय पाए, सलीबी अफवाज की मुतहिदा मरकजी कमान शोबिक में ही रहेगी, रस्तगाह भी वहीं रखी जाएगी। जंग को शोबिक से ही कंट्रोल किया जाएगा। करक की कलाबंदी को और ज़्यादा मजबूत किया जाएगा। कुछ और फौज करक मुंतकल कर दी जाएगी। अयूबी को करक से दूर उसकी अपनी सरहद के अंदर किसी दुश्वार गुजार इलाके में रोका जाएगा। इस मकसद के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फौज भेजी जाएगी। उस फौज में घोड़सवार और शुतर सवार ज़्यादा होंगे। कोशिश की जाएगी कि अयूबी की फौज को घेरे में ले लिया जाए। पानी के चश्मों पर पहले से कब्जा कर लिया जाए। इन इकदामात पर फौरी तौर पर अमल दरामद के अहकामात नाफज कर दिए गए। हर कोई खुश था। यह पहला मौका था कि सुल्तान अयूबी का कोई राज कबल अज वक्त मालूम हो गया था, वरना उसने सलीबियों को हमेशा आड़े हाथों लिया था। इस पर हैरत का इजहार भी किया गया कि सुल्तान अयूबी जैसे आदमी से यह लग्जिश सरजद हुई कि उन जासूसों को दूसरे कमरे में बिठाकर जिन्हें वो रिहा करने का फैसला कर चुका था, ऐसी नाजुक बातें बुलंद आवाज से की जो उसे शिकस्त फाश से दो चार कर सकती थी। उन्होंने एक एहतमाम यह भी किया कि फ्रांस की फौज जो वहां से बहुत दूर थी, ये पैगाम भेज दिया कि फला दिन से पहले पहले ऐसे मुकाम पर पहुंच जाए जहां नूरुद्दीन जंगी की भेजी हुई कमक को रोका जा सके। इतने में एक सलीबी अफसर अंदर आया और इंटेलिजेंस के सरबराह के कान में कुछ कहा। उस सरबराह ने सबको बताया कि उन दो में से एक लड़की जो डाकुओं के घेरे में आ गई थी, अभी अभी आई है। इत्तला मिली है कि उसके साथ एक जख्मी मुसलमान मुहाफिज है। आलिम जासूस सबसे पहले कमरे से निकल गया। उसके पीछे दूसरे लोग भी बाहर चले गए। हदीद को लड़की ने बरामदे में लिटा दिया था और खुद उसके पास बैठी थी। घोड़े की इतनी लंबी सवारी और तेज रफ्तारी ने हदीद के जख्म खोल दिए थे। उसका खून जो सुबह बंद हो गया था फिर बहने लगा था और उस पर गशी तारी होती जा रही थी। लिबी कमांडरों ने हदीद की तरफ कोई तवज्जो ना दी, क्योंकि उन्हें बताया गया था कि डाकुओं का हमला एक ढोंग था। उन्होंने लड़की को हाथों हाथ लिया और उसे अंदर चलने को कहा। वह बड़ी कीमती लड़की थी, लेकिन उसने उस वक़्त तक अंदर जाने का इरादा मुलतवी कर दिया, जब तक हदीद की मरहम पट्टी नहीं हो जाती। इंटेलिजेंस का सरबराह हरमन नाम का जर्मन था। उसने लड़की को परे ले जाकर कहा, किस सांप के बच्चे की तुम मरहम पट्टी कराना चाहती हो? ये तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि बच कर आ गई हो, वरना ये दरिंदे तुम्हें उन वहशियों के हवाले करना चाहते थे जो डाकू बनकर आए थे। ये झूठ है, लड़की ने झुंझलाकर कहा। पहले हमें भी यही शक था, लेकिन इस शख्स ने मेरे सारे शकूक रफा कर दिए हैं। उसने दो डाकुओं को हलाक करके मुझे बचाया है। उसने हरमन को सारा वाकया सुना दिया और यह भी बताया कि यह शख्स उसे बार बार कहता था कि मुझे यही मरने दो और तुम चली जाओ। सलीबियों के दिलों में मुसलमानों के खिलाफ नफरत इतनी गहरी उतरी हुई थी कि इतने ज्यादा अफसरों में से किसी एक ने भी नहीं कहा कि इस जख्मी की मरहम पट्टी कर दो। आलिम जासूस तक ने उसकी तरफ तवज्जो ना दी। लड़की उनके साथ अंदर नहीं जा रही थी। आखिर किसी ने कहा कि जख्मी को मेरे कमरे में ले चलो और फौरन मरहम पट्टी करो। उसे उठवा कर ले गए और लड़की अपने अफसरों के साथ चली गई। उसे कहा गया कि वो बयान करे कि किस तरह जिंदा बची है। उसने सब तफसील से सुना दिया। उस दौरान वहीं खाना और शराब आ गई। उसने कहा, अगर जख्मी को खाना खिलाया जा चुका है तो मैं भी खाऊंगी। मैं ज़रा उसे देख आऊं। वो जाने के लिए उठी। ठहरो लोजीना, हरमन ने उसे बड़े रोब से कहा, तुम दूसरी बार सलीब की फौज के अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रही हो।
पहले तुम्हें अंदर चलने को कहा गया, तो तुमने ये कहकर इनकार कर दिया कि पहले ज़ख्मी को उठाओ। अब तुम बिला इजाज़त और बदतमीज़ी से बाहर जा रही हो। ये सब सलीबी फ़ौज के आला हुकाम हैं, और यहाँ 2 सलीबी हुक्मरान भी बैठे हैं। जानती हो, इस हुक्म अदूली और बदतमीज़ी की क्या सज़ा है? 10 साल सज़ाए कैद। और जब तुम ये हुक्म अदूली दुश्मन के एक मामूली से ओहदेदार की खातिर कर रही हो, तो तुम्हें सज़ाए मौत भी दी जा सकती है। क्या सलीबी हुक्मरान और कमांडर इस इंसान को इसका सिला नहीं देंगे कि उसने एक तजर्बाकार जासूसा की जान अपनी जान खतरे में डालकर बचाई है? लड़की ने कहा, मैं जानती हूँ कि वो मेरी दुश्मन की फ़ौज का अहदेदार है, लेकिन मैं उसे दुश्मन उस वक़्त कहूँगी जब वो अपनी फ़ौज में वापस चला जाएगा। दुश्मन हर हाल में और हर जगह दुश्मन है, एक सलीबी कमांडर ने चिल्लाकर कहा। फ़लस्तीन में हमने कितने मुसलमानों को ज़िंदा रहने दिया है? उसकी नस्ल हम क्यों ख़त्म कर रहे हैं? इसलिए कि वो हमारे दुश्मन हैं, बल्कि इसलिए कि वो हमारे मज़हब के दुश्मन हैं। दुनिया पर सिर्फ़ सलीब की हुक्मरानी होगी। एक ज़ख्मी मुसलमान हमारे लिए कोई हैसियत नहीं रखता। बैठ जाओ। लड़की बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। अगली सुबह से शोबक में एक नई सरगर्मी शुरू हो गई। ये फ़ौजी नवैयत की सरगर्मी थी। शोबक के शहर के लोग इस सरगर्मी से बेनियाज अपने काम काज में मसरूफ़ होते जा रहे थे। कले से फ़ौजें निकल रही थी। सामान भी इधर उधर किया जा रहा था। बाहर से आने वाली फ़ौज की आर्जी हैमगाह के लिए जगह खाली की जा रही थी। रसद इकट्ठी करने के लिए ऊँटों की कतारें आ रही थीं। फ़ौजी हेडक्वार्टर में भी भाग दौड़ थी। यह सारी तैयारी सलाहुद्दीन अय्यूबी का हमला रोकने के लिए की जा रही थी, और उन अहकामात पर अमल दरामद शुरू हो गया था जो गुज़िश्ता रात के प्लान के मुताबिक दिए गए थे। हर एक अफसर इस अफरा तफरी में मसरूफ़ था। चंद एक बड़े अफसर करक रवाना हो गए थे। सिर्फ एक लड़की थी जो इस सरगर्मी और भाग दौड़ से लाताल्लुक थी। ये वही लड़की थी जो ज़ख्मी हदीद को लाई थी। उसके अफसर ने उसे लोजीना के नाम से पुकारा था। रात उसे कॉन्फ्रेंस के कमरे से आधी रात के बाद फरागत मिली थी। वो जासूसी के खसूसी शोबे से ताल्लुक़ रखती थी, इसलिए कॉन्फ्रेंस में उसकी ज़रूरत थी। उससे काहरा के उन अफराद के मुतल्लिक रिपोर्टें लेनी थी जिनके पास वो जाती रही थी। आधी रात के बाद नींद और घुड़सवारी की थकन ने उसे निढाल कर दिया था। कॉन्फ्रेंस के बाद एक अफसर ने उसे कहा था, उसे डॉक्टर के हवाले कर दिया गया है। तुम्हें उसकी इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। तुम्हारी ड्यूटी ऐसी है जिसमें ऐसे जज्बात कामयाब नहीं होने दिया करते। और उसके अपने शोबे के बड़े अफसर हरमन ने उसे कहा था कि अगर आज रात मैं ना होता तो कोनार्ड और गे ऑफ लोजिनान जैसे बादशाह किसी को बख्शा नहीं करते, तुम्हें कैद में डाल देते। तुम्हारे मुहाफिज का इंतज़ाम कर दिया गया है, और तुम्हारे लिए यह हुक्म है कि उसे तुम नहीं मिलोगी। क्यों? लोजीना ने हैरत और मायूसी से पूछा। क्या मैं उसका शुक्रिया भी अदा ना कर सकूंगी? नहीं, हरमन ने कहा, क्योंकि वो दुश्मन का फौजी है। तुम अपना शोबा जानती हो क्या है? हम तुम्हें उससे मिलने की इजाज़त नहीं दे सकते। तुम्हें दुश्मन के साथ ऐसी वाबस्तगी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। आप मुझे सिर्फ इतना सा यकीन दिला दें कि उसकी मरहम पट्टी हो गई है, लोजीना ने कहा, और उसे सही और सलामत वापस भेज दिया जाएगा। लोजीना, हरमन ने झुंझलाकर कहा, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर दी जाएगी। और सुनो, तुम बड़े मुश्किल और ख़तरनाक मिशन से वापस आई हो, और तुम्हारा सफ़र ज़्यादा खतरनाक था। तुम्हें आराम के लिए 10 दिन छुट्टी दी जाती है। मुकम्मल आराम करो। ये बातें रात को हुई थी। वो अपने कमरे में चली गई थी। जासूस लड़कियों की रिहाइश हाई कमान के मेन क्वार्टर से बहुत दूर थी। उस जैसी आला दर्जे की जासूस लड़कियां नहायत अच्छे कमरों में रहती थीं, जहां उन्हें शहजादियों जैसी सहूलतें और अय्याशी मुयस्सर थी। उनकी ड्यूटी ऐसी थी कि उन्हें मुसलमान मुल्कों में भेजा जाता था, जहां पकड़े जाने की सूरत में उन्हें हर किस्म की अजियत और जिल्लत में डाला जा सकता था। मौत या सजाए कैद तो यकीनी थी। ऐसी ड्यूटी का तकाजा था कि इन लड़कियों को दुनिया की हर आसाइश मुहैया की जाए। लोजीना कमरे में जाते ही सो गई थी। दूसरे दिन उसका जिस्म टूट रहा था। वह उठना नहीं चाहती थी, लेकिन वह उठी और नाश्ता करके बाहर निकल गई। उसके साथ वाले कमरे में लड़कियां आ गईं। वह उससे काहरा की बातें सुनना चाहती थी। उसने बहुत ही मुख्तसर सी बात सुनाकर उन्हें टाल दिया और हस्पताल की तरफ चल पड़ी।